بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب نسیم ہدایت کی جھونکے جلد اول تا چہارم پارٹ نمبر 18 سوال آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کا کیا کیا؟ جواب میں نے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا۔ میرے دونوں بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ ان دونوں کو ایک بڑے مدرسے میں داخل کیا۔ الحمدللہ حسن کے 26 پارے حفظ ہو گئے ہیں، حسین کے 4 پارے ہوئے ہیں اور فاطمہ بیٹی بھی الحمدللہ حفظ کر رہی ہے، اس کے 16 پارے حفظ ہو گئے ہیں۔ میری خواہش ہے وہ بھی داعی بنے اور عالم دین بن کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی طرح دعوت کا کام کریں۔ سوال: آپ کے شوہر کا کیا حال ہے؟ جواب: ان کو عائشہ کے انتقال کا بڑا صدمہ ہے، ہمارے پاس رہنے لگے ہیں، بار بار کہتے ہیں اب دنیا سے دل بھر گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرا دے۔ لیکن جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو میں مولانا صاحب کے پاس ان کو بھیج دیتی ہوں، وہ کچھ دعوت پر ابھارتے ہیں، اب بھی ان کو لے کر آئی ہوں۔ الحمدللہ اس مرتبہ انہوں نے حشاش بشاش رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ سوال: آپ کے شوہر ابی سے ملنے آتے رہتے ہیں؟ جواب: وہ ابی سے بیعت ہیں، عائشہ بھی ان سے بیعت تھی اور میں اور دوسرے میرے چھوٹے بچے بھی حضرت سے بیعت ہیں۔ میں نے جب بیعت کے لیے کہا تھا تو حضرت نے بہت منع کیا، انہوں نے کہا بیعت تو ضرور ہونا چاہیے مگر کسی اللہ والے اور کامل شیخ سے بیعت ہونا چاہیے۔ جسم کی بیماری میں جب آدمی اچھے سے اچھے طبیب کو تلاش کرتا ہے تو روح کی بیماری میں تو اور بھی اچھے سے اچھے شیخ کامل کو تلاش کرنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو خود آخری درجہ میں بیمار ہو وہ کیا کسی کا علاج کر سکتا ہے؟ میں تو اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل میں توبہ کر لیتا ہوں کہ شاید سچے طالب کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے۔ میرے شوہر نے کہا، حضرت ہمیں آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک کی بیماری سے نکال لیا، آپ کے علاوہ ہمیں کون طبیب ملے گا؟ بہت اصرار کرنے پر حضرت نے ہم سب کو بیعت کر لیا۔ سوال: بہت بہت شکریہ زینب آپا، واقعی آپ کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے۔ جواب: اسما بہن، میری زندگی میں اور بھی عجیب عجیب واقعات ہیں جن کو اگر میں بتا دوں تو ایک لمبی کتاب بن جائے گی، مگر اس وقت ہماری گاڑی کا وقت قریب ہے، ابھی باہر سے بار بار تقاضا آ رہا ہے، پھر کسی وقت آ کر ساری کہانی سناؤں گی۔ سوال: ضرور زینب آپا، اب کی مرتبہ آپ چند روز کے لیے آئیے، پھر ہم کچھ عورتوں کو اکٹھا کریں گے، اس وقت آپ سنائیے گا۔ جواب: اسما یہ نہیں ہو سکتا، بس تمہیں سنا سکتی ہوں، عورتوں کے سامنے میں کوئی مولوی نہیں ہوں، مجھے تو بہت رعب ہو جاتا ہے۔ سوال: اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، مارچ 2009۔ دسترخوان اسلام پر نوارد بہن خدیجہ سیما گپتا سے ملاقات۔ سدرا ذات الفیضین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدیجہ: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن مسنہ: سوال: آپ دہلی کب تشریف لائی ہیں؟ جواب: ہم 3 دن سے دہلی میں ہیں، میرے شوہر ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے۔ حضرت نے ہمیں مرکز بھیج دیا تھا کہ 3 روز ہم دونوں مرکز میں لگائیں، بہت ہی اچھا لگا۔ کل جمعرات بھی تھی، الحمدللہ حضرت مولانا سعد صاحب کی تقریر بھی کل سننے کو ملی۔ یوں تو وہاں ہر وقت دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مرکز کی عورتیں بھی بہت محبت سے ملی، بہت اچھا وقت لگا۔ سوال: آپ سے شاید ابی نے بتا دیا ہوگا کہ ارمغان کے لیے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے؟ جواب: ہاں، آج شام کو ہماری گاڑی ہے، حضرت نے ہم سے بتایا تھا مرکز میں 3 دن لگا کر جمعہ اوکھلا میں پڑھنا ہے۔ خدیجہ کا انٹرویو مسنہ لے گی، ہم حضرت کے حکم پر آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جامعہ ملیہ میں کسی صاحب سے ملنے چلے گئے ہیں اور مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیے۔ جواب: میں مغربی یوپی کے ایک بڑے قصبہ میں ایک تاجر لالا خاندان میں 3 ستمبر 1984 کو پیدا ہوئی۔ میرا خاندانی نام سیما گپتا تھا۔ ابتدائی تعلیم قصبہ کے محلہ کے ایک اسکول میں ہوئی، پرائمری کے بعد گرلز انٹر کالج سے انٹر کیا، اس کے بعد BCom کیا، پھر پرائیویٹ سوشیالوجی سماجیات سے MA کیا۔ میرے 2 بھائی اور ایک بہن ہے، ایک بھائی بڑے ہیں اور 2 بھائی بہن چھوٹے ہیں۔ ہمارے پتا جی والد صاحب کرانہ کی تھوک کی دکان کرتے ہیں، بہت شریف بھلے آدمی ہیں۔ میری ماتا جی والدہ بھی بہت نیک اور بھلی عورت ہیں۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: ہمارے قصبہ میں ہندو مسلمان دونوں رہتے ہیں، بڑی تعداد میں مسلمان ہمارے محلہ سے ملے ہوئے محلہ میں رہتے ہیں جن سے ہمارے گھر کا بہت گہرا تعلق ہے۔ والد صاحب کا کرانہ کی دکان کی وجہ سے سب سے لین دین بھی تھا۔ ہماری دیوار سے ایک گھر چھوڑ کر ایک زمیندار خان صاحب رہتے تھے، ان کے بچے ہمارے ساتھ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے۔ ہمارا اور ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ ان کی ایک لڑکی سبیحہ خان
मेरे साथ इंटर तक पढ़ती रही। इससे मेरी बहुत दोस्ती थी। इनका घराना बहुत साफ सुथरा और दीनी घराना है। सबीहा का एक बड़ा भाई बहुत शरीफ और बहुत खूबसूरत था। वो मुझे देखता तो सबीहा से कहता, सीमा तो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे हमारे घर की ही फर्द हो। यूं वो बहुत शर्मीला नौजवान था। मैं घर में होती तो वो शर्म की वजह से बाहर चला जाता। मुझे कुछ इसके साथ अजीब सा लगाव हो गया था। मैं कभी सबिया से कहती कि सबिया, तुम्हारा भाई तो लड़कियों से भी शर्मीला है। सबिया कहती, बहन अब तो जमाना उल्टा हो गया है, अब लड़कियां कहाँ शर्माती हैं, लड़के ही शर्माते हैं। इसी तरह कभी कभी जमाना की खराबियों की बात शुरू हो जाती है। एक अखबार में बेशर्मी और बेहयाई की खबर, एक बाप के अपने बेटी के साथ मुंह काला करने की, एक सगे मामू की बेशर्मी की खबर पड़ी तो हम देर तक जमाना के खराब होने का जिक्र करते रहे। मैंने कहा कि कल युग आ गया है, उसके ठीक करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथ में आया है कि कल की अवतार आएंगे, वो इस बिगाड़ को सुधारेंगे। मैंने कहा पता नहीं हमारे जीवन जिंदगी में कल की अवतार आएंगे या नहीं, या हमारे मरने के बाद आएंगे। सबिया ने कहा कि सीमा, जिन कल की अवतार की तुम बात कर रही हो वो तो आकर चले गए। मैंने कहा तुम कैसे कहती हो? वो बोली, मैं तुम्हें एक किताब देती हूँ। उसने अपनी अलमारी से एक छोटी सी किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहब निकाली और मुझे दी। देखो ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, जिनकी ये किताब है। मैंने वो किताब ले ली। उसी दिन मैंने सबिया से उनके भाई के साथ अजीब लगाव का जिक्र किया। उसने बताया कि भाईजान भी तुम्हें पसंद करते हैं, मगर शर्म की वजह से तुम्हारे सामने नहीं आते। मैंने कहा, क्या तुम्हारे भाईजान शादी के लिए हिंदू हो सकते हैं? उसने कहा कि एक मुसलमान का हिंदू होना तो नामुमकिन है। हाँ, इस्लाम को जानता ही ना हो तो दूसरी बात है। इसलिए कि इस्लाम ऐसा हक और सच्चा मजहब है कि अगर आदमी उसे जानने के बाद इस्लाम छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता। दिल से इस्लाम के हक होने का यकीन नहीं निकल सकता। उसने कहा, हमारी आंखें देख रही हैं कि दिन निकल रहा है। अब अगर कोई मुझसे कहे 10 लाख रुपए ले लो और ये कहो कि रात हो रही है, या फिर राइफल की गोली सर पर लगा कर कहे कि कहो रात हो रही है, तो हो सकता कि किसी बड़े लालच और किसी खौफ से जुबान से कह दूं कि हाँ रात हो रही है, मगर मेरा दिल और जमीर ये कहता रहेगा कि दिन को रात कैसे समझूं, जानूं और यकीन करूं। सबीहा ने कहा, सीमा, अगर तुम इस्लाम को पढ़ोगी और सच्चाई जानने की तलाश करोगी तो तुम भाईजान को हिंदू बनाने की बजाय खुद जरूरी समझोगे कि शादी तो हो मगर मुझे मुसलमान बन जाना चाहिए। मैंने कहा, सबीहा, ये बात तो है कि मुसलमान अपने मजहब में बहुत कट्टर होते हैं, दूसरे मजहब वाले इतने कट्टर नहीं होते। सबीहा ने कहा कि हर आदमी जो सच पर होता है मजबूत होता है, और जो खुद ही शक में हो वो कैसे किसी बात पर जम सकता है। बहुत देर तक हम बात करते रहे। दिन छुपने को हो गया। मैं घर आ गई। सबीहा की बातों के बारे में सोचती रही। रात को सोते वक्त मैंने वो किताब उठाई और पढ़ी। छोटी सी किताब थी, पूरी पढ़ डाली तो हैरत हुई कि वो कल की अवतार तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये किताब देवबंद से छपी है। इसके पीछे कुछ और किताबों के नाम भी लिखे थे, नराशंस और अंतिम ऋषि, इस्लाम एक परिचय, मरने के बाद क्या होगा, इस्लाम क्या है, आपकी मानत आपकी सेवा में, वगैरह। मैंने अगले रोज सबिया से कहा, ये किताबें मुझे चाहिए। उसने कहा, मैं उसमें से आपकी अमानत आपकी सेवा में तो हमारे मामू मौलाना के यहाँ मिल सकती है, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। मैंने उनसे कहा, भूल मत जाना। उसको मामू के यहाँ जाने का मौका ना लगा। मैं तकाजा करती रही। 10 रोज तक मैं कहते कहते बेचैन सी होती रही। 10 रोज के बाद एक छोटी सी किताब, आपकी अमानत आपकी सेवा में, सबिया ने मुझे ला कर दी। इस किताब का नाम एक इंसान के लिए ऐसा दिल को छूने वाला है कि नाम पढ़कर एक अजीब तलब पैदा हो जाती है कि हमारी क्या अमानत है, मालूम तो करें। 2 शब्द इसमें मौलाना वस्ती साहब ने लिखे हैं। मेरा ख्याल है कि 2 शब्द की 2-3 लाइन पढ़ने के बाद कोई आदमी इस किताब को पढ़े बगैर नहीं रह सकता, और बिल्कुल मुसलमानों और इस्लाम के बारे में दिल में दुश्मनी और नफरत रखने वाला इंसान भी इन 2 शब्दों को पढ़ने के बाद इस किताब को गैर की बात समझ कर नहीं पढ़ सकता है। इसका दिलो दिमाग इस किताब के लिखने वाले को अपना सच्चा दोस्त समझ कर ही इसको पढ़ेगा। मैं इस किताब को लेकर घर आई और बस किताब पूरी पढ़ी। मैंने अपनी छोटी बहन और माँ से कहा कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज पढ़कर सुनाऊंगी। उनको बिठा लिया और पढ़ना शुरू किया। वो सुनती रही और बोली, ये किसकी किताब है? मैंने कहा, मुजफ्फरनगर के एक मौलाना जी की लिखी हुई किताब है। मेरी माँ ने कहा, इनसे तो जरूर मिलना चाहिए। इस किताब के पीछे टाइटल पेज पर भी कुछ किताबों के नाम लिखे थे, इस्लाम एक परिचय, मरने के बाद क्या होगा, इस्लाम क्या है, कितनी दूर कितने पास, वही एक एकता का उधार आधार, नराशंस और अंतिम ऋषि, कल की अवतार और मोहम्मद साहब, वेद और कुरान वगैरह। मेरी माँ ने कहा, बेटी ये सारी पुस्तकें किताबें मंगा ले। सच्ची बात यह है मसना बहन, आपकी अमानत ने मेरे अंदर की दुनिया को बदल दिया। मैं बस ये सोचती थी कि समाज में मैं मुसलमान होकर किस तरह रहूं। अगर घर छोड़कर जाऊं तो मैं लड़की जात कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे रखेगा? मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों पर कैसी मुश्किल आएगी, मेरे भाई बहनों का क्या होगा? मेरे माँ बाप ऐसे भले और सज्जन लोग
कैसे जिएंगे। बस एक अजीब ख्यालात का तूफान मेरे दिलो दिमाग पर था। इस्लाम को और जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई। मैंने अपनी एक दूसरी सहेली फातिमा को 500 रुपए दिए और इन किताबों को मंगाने के लिए कहा। एक हफ्ता के बाद उसने सिर्फ मरने के बाद क्या होगा ला कर दिया और बाकी पैसे वापस दे दिए कि और किताबें मिली नहीं। मैंने मरने के बाद क्या होगा किताब को पढ़ा। जन्नत दोजख का ऐसा हाल और गुनाहों की सजाओं का ऐसा जिक्र इस किताब में है कि बेहिस से बेहिस आदमी भी खौफ खा जाए। इस किताब को पढ़ने के बाद जन्नत दोजख मेरी आंखों के सामने बिल्कुल आंखों देखी चीज बन गई। रात को सोने लेटती तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने कब्र का, हश्र का और जन्नत दोजख का मंजर चलता रहता था। 2 बार मैंने ख्वाब में जन्नत देखी और दोजख तो ना जाने कितनी बार दिखाई दी। अब मैंने अपनी माँ से मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने कहा दीन से दुनिया संभालनी मुश्किल होती है। आजकल के समाज में धर्म बदलना आसान नहीं है, बस अंदर से सच को सच समझो, ये भी काफी है। वो मालिक दिलों के भेद को जानता है। मैंने सबिया से कहा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो तुम्हारे भाई मुझसे शादी कर सकते हैं या नहीं। उसने कहा कि वो कई बार मुझसे कह चुके हैं अगर सीमा मुसलमान हो जाए तो अम्मी अब्बू इससे मेरी शादी कर सकते हैं या नहीं। मैं इनसे बात करूंगी। अब वो नौकरी के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनका फोन आएगा तो मैं बात करूंगी। सबिया के भाई का फोन आया तो उसने उनसे बात की। मुझे बताया कि भाईजान कह रहे हैं कि अगर मैं अम्मी अब्बू को राजी कर लूं और सारी कानूनी कार्रवाई कर लूं और सीमा के घर वाले भी राजी हों और वो सच्चे दिल से मुसलमान हो जाए तो मैं शादी करके बहुत खुशी महसूस करूंगा, मगर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। इस दौरान मैंने किसी तरह कुरान शरीफ का हिंदी तर्जमा हासिल कर लिया, उसको पढ़ना शुरू किया। साथ साथ मैं अपनी माँ को सुनाती थी। मुझे बाज ऐसे ख्वाब दिखाई दिए जिनके बाद मुसलमान होने की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। रातों को देर तक मुझे नींद नहीं आती थी। मैं मुंह हाथ धोकर कुरान पढ़ने लगती। बात यहाँ तक बढ़ी कि मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इस सिलसिला में मुझे किसी ने बताया कि फुल ताब की अमानत आपकी सेवा में के लेखक लिखने वाले मौलाना साहब के यहाँ तुम्हारे लिए ये काम आसान है। मैंने एक 15 साल के मुसलमान लड़के को तैयार किया जो बहुत दीनदार था और उसके साथ खुद पहुंची। मौलाना साहब सफर पर गए हुए थे। वहां पर कुछ लोगों ने मुझसे इस्लाम कबूल करने की कर्ज मालूम की। मैंने कहा सिर्फ इस्लाम कबूल करना और हक को मानना। मुझे कलमा पढ़वाया गया और मीरठ भिजवा कर एक वकील साहब से सर्टिफिकेट बनवा दिया गया। एक मौलाना के घर में रही, उनकी बहनों ने मुझे बहुत मोहब्बत से रखा। एक हफ्ता के बाद मौलाना साहब आए। सवाल आपकी घर में तलाश नहीं हुई? जवाब मेरी घर में तलाश ही नहीं हुई। मेरा आना मेरे पूरे इलाका में कयामत बन गया। जब ढूंढ पड़ी और खानदान वाले इकट्ठा हुए तो मेरी छोटी बहन ने बता दिया कि वो सबिया के भाई से शादी करना चाहती थी। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं था, अब सिर्फ मुझे इस्लाम कबूल करना था। इस पर पूरे इलाका के हिंदू समाज में एक तूफान खड़ा हो गया। सबिया के घर वालों की मुसीबत आ गई। उन्होंने लाख कहा कि हमारा लड़का अभी मुल्क के बाहर है, मगर लोग कहते रहे कि आपने ही इस लड़की को गायब किया। अखबारों में खबरों पर खबरें छपती रहीं। कई बार बिल्कुल आमने सामने फसाद होने को हुआ। कुछ समझदार लोगों ने मामला को ठंडा किया। सवाल इसके बाद क्या हुआ? जवाब मौलाना साहब एक हफ्ता के बाद फुलता है तो उन्हें लोगों ने मेरे बारे में बताया। मौलाना साहब ने कहा कि वहाँ के लोगों के मेरे पास फोन आए। मैंने कहा हमारे यहाँ इस तरह की कोई लड़की नहीं आई है, पूरे इलाका में फसाद होने को है। बहरहाल मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि वहाँ तो ये मशहूर है कि तुम किसी लड़के से शादी करना चाहती हो। मुझसे कहा कि तुम सच सच बताओ। मैंने कहा कि पहले मैं वाकई ऐसा चाहती थी, मगर अब सिर्फ इस्लाम पढ़कर मैं मुसलमान हुई हूँ। मैं कुछ रोज इस्लाम पढ़ना चाहती हूँ। अगर इस लड़के से बाद में शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना आप जिससे चाहे मेरी शादी कर दें। मौलाना साहब ने मुझे दिल्ली भेज दिया। वहाँ के कुछ वकीलों से बात हुई तो उन्होंने कहा कोई लड़का इनसे शादी को तैयार हो जाए तो सबसे बेहतर कानूनी आसानी इसमें है। मौलाना साहब ने कहा आगरा में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे किसी नौ मुस्लिम से शादी के लिए कहा है। विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उनके यहाँ भेज दूं। मुझे तकल्लुफ हुआ, मैं रोने लगी तो मौलाना साहब समझे कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहती हूँ। हमारे इलाके में बात और बिगड़ गई तो मौलाना साहब ने मुझसे कहा इस वक्त बेहतर यह है कि तुम अपने घर चली जाओ और अपने घर वालों पर काम करो। मैंने कहा वहां जाकर मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगी। आप मुझे इस कुफ्र और शिर्क में ना भेजें। आप वहां मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? मौलाना ने कहा बहन आप चली जाओ। मैं अल्लाह के भरोसे पर तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे वालिद और वालदा के साथ अल्लाह आपको निकालेंगे। मुझे यकीन नहीं आता था। मैं बहुत रोई। बार बार मुझे पानी पिलाया गया। मौलाना के जो साथी मुझे दिल्ली ले गए थे उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि हजरत की बात मान लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जरूर रास्ता निकालेंगे। मैंने कहा आप मेरी शादी किसी मजदूर से, झाड़ू देने वाले किसी फकीर से कर दें, मगर मुझे वहां ना भेजे। उन्होंने कहा कि अब हजरत ने कहा है इसके खिलाफ हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं मजबूरन रोते हुए घर जाने पर राजी हो गई। बस मैं मुझे टिकट दिलवा कर बिठा दिया गया। मगरिब के बाद मैं अपने घर पहुंची और मैंने सब खानदान वालों के सामने अपनी माँ से कहा
کیا میں آپ سے 10 روز کے لیے کہہ کر نہیں گئی تھی کہ میں تیرتھ پر جا رہی ہوں اور مجھے سپنے میں جانے کو کہا گیا تھا؟ آپ نے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ آج 10 دن میں آ گئی اور کہ نہیں؟ سبیہ کے گھر والوں اور بہت سے لوگوں کو پولیس نے اٹھا رکھا تھا، کسی طرح چھوڑا گیا۔ میرے خاندان والے جمع ہوئے اور مجھ پر برسنے لگے۔ میں نے سوچا خدیجہ تو حق پر ہے، حق والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میرا نام سیما نہیں خدیجہ ہے، اور اسلام سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ میری پھپھو اور ایک تائی نے مجھے بہت مارا اور نہ جانے کیسی بری بری گالیاں دی۔ ہمیں معلوم ہے تو مسلمان ہونے کا ڈھونگ بھر کر اس سے منہ کالا کرنے گئی تھی، اور ایسی بری بری سنائی کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ میری ماں اور باپ البتہ بالکل نرم تھے۔ میری ماں تو اندر سے اسلام کی سچائی کو مان چکی تھی۔ مجھے قریب کے بڑے شہر میں میرے تایا کے ہاں پہنچا دیا گیا۔ میں وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتی تو گھر والے میرے ساتھ بہت زیادتی کرتے۔ ایک رات میں 12 بجے عشاء کی نماز پڑھنے لگی، میرے تائی کے لڑکے نے میری کمر پر سجدہ میں ایک بہت بھاری چکی جو پرانے زمانے کی وہاں تھی وہ رکھ دی۔ بہت بھاری چکی جو پرانے زمانے کی وہاں تھی وہ رکھ دی۔ میرا دم نکلنے کو ہو گیا۔ مجھے صحابہ کے حالات یاد آئے۔ میں نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ میں ان کے ہاں ناپاکی کی وجہ سے بھی کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ مجھے زہر دے دیں گے۔ میرے تایا نے میری ماں باپ کو بلوایا اور پھر میری بوا پھپھی کے ہاں مجھے بھیج دیا گیا۔ میں نے کہا میں کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گی، اس میں زہر کا خطرہ ہے۔ بازار کا کھانا کھاؤں گی جو ماں لا کر دیں گی۔ میری بوا کے ہاں میری اتنی احتیاط کے باوجود بھی مجھے 3 مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک بار بلی نے کھیر گرا دی، ایک بار مجھے پہلے خواب دکھائی دے گیا اور ایک دفعہ میری بوا کے پوتے نے وہ کھا لیا۔ 15 دن تک اسے ہسپتال میں رہنا پڑا۔ جان تو بچ گئی مگر گردے خراب ہو گئے۔ سوال: وہاں سے پھر اللہ نے کس طرح نکالا؟ جواب: اللہ نے حضرت کے وعدہ کی لاج رکھ لی۔ حضرت بتاتے ہیں کہ تمہیں میں نے فسادات اور حالات خراب ہونے کے ڈر سے بھیج تو دیا، مگر جیسے ہی تم چلی تو میرے کان میں غیب سے کسی نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے ان عورتوں کو جو ایمان قبول کر کے ہجرت کے لیے آئیں، یہ یقین ہونے کے بعد کہ وہ اس میں سچی ہیں، کافروں کے پاس لوٹانے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال: ہاں ہاں، اب بھی بار بار بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ قرآن حکیم کی میں نے خلاف ورزی کی ہے، پہلے سے خیال نہیں آیا۔ سب لوگ دعا کرو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جواب: آپ کو معلوم ہے وہ آیت؟ سوال: ہاں، بار بار اب بھی اسے پڑھتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار ممتحنات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر تم ان کو ایمان پر جانو تم ان کو کافروں کی طرف مت پھیرو۔ جواب: حضرت بتاتے ہیں کہ اس آیت شریفہ نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں بار بار صلاۃ التوبہ پڑھتا اور اللہ کے حضور دعا کرتا: میرے اللہ، آپ کو اگر دعوت محبوب ہے اور آپ نے اس کم ظرف بندے کو اپنے کام سے جوڑا ہے تو میری غلطیوں اور گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ میرے اللہ، میں بہت بڑا مجرم ہوں، مجھ سے انجانے میں قرآن حکیم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ میرے اللہ، میری بچی کیسی بلکتی ہوئی واپس گئی۔ میرے اللہ، میں نے آپ کے بھروسے اس سے وعدہ کر لیا، آپ اپنے گندے بندے کی وعدہ کی لاج رکھ لیجئے۔ میرے اللہ، میرے بگاڑ کو آپ کے علاوہ کون سنوار سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے مجھے بتایا کم از کم 15 دن تک ہر دعا میں بس تمہارے لیے دعا کرتا تھا، تمہارے واپس آنے کے شکر میں روزوں، صدقوں اور نفلوں کی نظر مانتا تھا۔ اللہ نے حضرت کی دعا اور وعدہ کی لاج رکھی۔ 6 مہینے مجھ پر ایک سے ایک سخت گزرا۔ اس دوران ان 6 مہینوں کی داستان میں سناؤں تو ایک لمبی کتاب ہو جائے گی۔ میں نے ایک ڈائری بھی لکھی ہے۔ میری ماں میرے ساتھ روتی رہتی۔ 6 مہینہ کے بعد میری ماں نے میرے باپ کو راضی کر لیا کہ ایک نو مسلم لالا خاندان کے ڈاکٹر صاحب جو وجے واڑہ کے ہیں سے میری شادی کر دیں۔ مالا ڈال کر شادی ہو جائے گی، بعد میں وہ نکاح کر لیں گے۔ سوال: وہ آپ کی ماں کو کیسے ملے؟ جواب: اصل میں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی تھی جن کو ہم حقیقی موسیٰ خالہ کی طرح جانتے تھے۔ وہ بھی میرے ساتھ مسلمان ہو گئی تھی مگر انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ تیاگی خاندان سے تھیں۔ وہ میرے ساتھ ہونے والے ظلم سے واقف تھیں۔ ہمارے ہاں ایک تبلیغی جماعت آئی، وہ پانی پر دم کروانے کے بہانے اس جماعت سے ملی اور میری داستان سنائی۔ اس جماعت میں وہ ڈاکٹر صاحب جو 7 مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے، حضرت کے ایک ساتھی کی کوشش سے کسی طرح اپنی نوکری سے چھٹی لے کر گھر والوں سے ٹریننگ کے بہانے جماعت میں آئے تھے۔ امیر صاحب نے کہا کہ ان کے داڑھی بھی نہیں آئی ہے، اگر ان سے شادی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ بھی لالا ہیں۔
ये अपने घर वालों को तैयार कर लेंगे। इस पर तय बात हो गई। डॉक्टर साहब ने जमात में 15 दिन चिल्ले के छोड़कर मुझे वहां से निकालने के लिए अमीर साहब के मशवरा से घर का सफर किया। घर वालों से मुझसे शादी करने का ख्याल जाहिर किया। मेरे पिताजी ने खानदान वालों को ये कहकर दूर चली जाएगी तो मुसलमानों से दूर हो जाएगी राजी करके मेरी शादी कर दी। 11 लोग मेरी ससुराल से आए। डॉक्टर साहब मुझे लेकर हनीमून मनाने के बहाने यहाँ दिल्ली और शिमला वगैरह लेकर आए। मौलाना साहब से फोन पर इनका राब्ता था। मुझे लेकर यहाँ आए और मुझे उनके साथ देखकर बस मत पूछिए कि मौलाना साहब का क्या हाल हुआ। बार बार खुशी से रोते थे, कहते थे मेरे अल्लाह आप कैसे करीम हैं, आप कितने गुनाहगार बंदे के साथ आपका क्या मामला है। कुरान के हुक्म की सरीह खिलाफ वर्जी करके एक मोमिना को कुफ्फार में लौटा देने वाले मुजरिम के वादा की आपने कैसी लाज रखी। मौलाना साहब ने बताया कि 25 रोजे मैंने नजर माने हैं, 200 नफलें और 3000 सदका तुम्हारे वापस आने के लिए। मौलाना साहब ने बड़ी हैरत और खुशी से बताया कि जिन आंध्रा के डॉक्टर साहब के पास तुम्हें भेजकर शादी करने को कहता था वो डॉक्टर शारिक यही है जिसके साथ मेरे अल्लाह ने तुम्हारी शादी करके मेरे घर भेज दिया है। सवाल अजीब बात है। जवाब अल्लाह ताला अपने दीन की दावत का काम करने वाले की सच्ची बात ये है कि बड़ी बर्दारी करते हैं। सवाल आपकी वो 6 महीने की तकलीफें झेलने की कहानी वाली डायरी आपके पास है। जवाब अभी नहीं लाई, मैं इसका जेरा कस करा के आपको भेजूंगी। हजरत साहब ने कहा है कि वो हम छपवाएंगे। मौलाना साहब ने कहा कि वो किस्तवार अरमगान में छपवाने के लायक है। सवाल अब आपके शौहर अपने घर वालों के साथ में रहते हैं। जवाब नहीं, वो अभी वहाँ महाराष्ट्र नागपुर में एक सरकारी अस्पताल में आरजी मुलाजमत पर हैं। दिल्ली में उन्होंने अप्लाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी हो गया, उन्होंने एमडी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब हम बहुत जल्दी दिल्ली आ जाएंगे, हम दोनों ही बस साथ रहते हैं। सवाल आपके माँ बाप का क्या हुआ। जवाब मैंने उनको परसों दिल्ली बुलाया था, हुमायूं के मकबरे के पार्क में मुलाकात हुई। वो अब अपना कस्बा छोड़कर हमारे साथ रहने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुसलमान हो गए हैं। सवाल बहुत बहुत शुक्रिया। खदीजा बहन वाकई ईमान तो आपका है। हम लोग खानदानी मुसलमानों को ईमान और इस्लाम की क्या कदर हो सकती है। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, कुछ हिस्सा इस ईमान का हमें भी नसीब हो जाए। जवाब मसना आपके घर के जूतों के सदके में मुझे ईमान मिला है। आप कैसी बातें कर रही हैं। आपके घर के लिए मेरी 7 पुश्तें दुआएं करें तो कम है। सवाल ये आपकी बड़ाई की बात है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जवाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंशाल्लाह जल्द ही दिल्ली आ जाऊंगी, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे और भी मज़े की बातें सुनाऊंगी। डॉक्टर साहब आ गए हैं, बाहर खड़े हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। मुस्तफ़ा दज़माहनामा अरमगान अप्रैल 2009। जनाब मोहम्मद शाहिद रामधन से एक मुलाकात। अहमद अव्वा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल शाहिद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, बहुत खुशी हुई। अभी ने बताया कि आप जमात से वक्त लगा कर आ रहे हैं, आपसे अरमगान के लिए एक इंटरव्यू लूँ, मगर आप जमात से सीधे घर चले गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ने आज मुलाकात करवा दी। जवाब असल में मैं जमात में मालिर कोटला वक्त लगा रहा था। आखिरी दिन मैंने फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि बच्चा सख्त बीमार है, अस्पताल में है। मैंने मौलाना कलीम सिद्दीकी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा आप फ़ौरन चले जाएं, बाद में किसी वक्त मुलाकात हो जाएगी। अब अल्लाह का शुक्र है कि घर खैरियत है। मैं कंपनी के काम निकाल कर दिल्ली आया हूँ। दिल में तड़प थी मौलाना साहब से मिलने की। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई। सवाल आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बात शुरू करूं। जवाब ज़रूर, मेरे लायक जो खिदमत है मैं हाजिर हूँ। सवाल आप पहले अपना ख़ानदानी तारुफ कराएं। जवाब मैं आलाबाद के द्विवेदी बरहमन ख़ानदान में 4 नवंबर 1957 को पैदा हुआ। मेरा नाम रामधन मेरे वालिद साहब ने रखा था। पिताजी एक स्कूल के हेड मास्टर थे। मेरी 2 बहनें और एक भाई हैं, मैं उनमें सबसे बड़ा हूँ। यूं तो मैं सबसे छोटा हूँ, पैदाइश के लिहाज से सबसे पहले पैदा हुआ हूँ। हाई स्कूल मैंने अपने वालिद साहब के स्कूल में किया, इसके बाद साइंस से इंटर किया। इंटर में मेरी डिवीज़न ना बन सकी जिसकी वजह से मुझे लाइन बदलनी पड़ी और फिर बीकॉम किया। बीकॉम के बाद मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। बाद में पूना में एक कंपनी में मुलाजिम हो गया। इसके बाद एक 4 कंपनियों में अच्छे काम की तलाश में जाता रहा और अब एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। मेरी शादी बनारस के एक ब्राह्मण खानदान में हुई। मेरी बीवी इंटरमीडिएट पास है। मैंने जानबूझकर घरेलू जिंदगी के सुकून के लिए घरेलू खातून से शादी की है। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जिसका नाम
पहला नाम ललित कुमार था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद जावेद है। बेटियां जिनके पहले नाम कमला और गीता थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आयशा और फातिमा है। मेरी बीवी का नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह खदीजा है। सवाल, अपने कबूल इस्लाम के सिलसिला में ज़रा तफसील से बताइए। जवाब, अब से 5 साल पहले जून 2003 में बच्चों की छुट्टियां बच्चों की छुट्टियों में घर वालों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। पूना से चंद दिन घूम कर दिल्ली और फिर शिमला का प्रोग्राम था। अगस्त क्रांति में मुंबई से दिल्ली का टिकट था, जिस केबन में हम लोग थे, मेरे 3 बच्चे और हम दोनों, और छठे आपके वालिद मौलाना कलीम सिद्दीकी थे। उनको देखा तो हमें अच्छा लगा कि एक धार्मिक आदमी की संगति हमारे बच्चों को मिलेगी, तफरी के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। तफरी का सफ़र था। मेरे अल्लाह का करम है कि मेरे घर में बच्चों में पहले से भी बहुत प्रेम मोहब्बत है, और सफ़र में तो और भी बेतकल्लुफ़ी होती है, और मकसद तफरी था, इसलिए बच्चे और भी मस्ती कर रहे थे। रात होने लगी तो मैंने बच्चों को धमकाया, अंकल भी साथ हैं, तुम लोग मस्ती कर रहे हो। मगर मौलाना साहब ने कहा, ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे खुश हो रहे हैं, आप इनको क्यों रोकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। रात के 10 बजे मैंने मौलाना साहब ने कहा, आप सोना चाहें तो बर्थ खोल लें। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। बर्थ खोल ली गई। मौलाना साहब चादर वगैरह बिछाने लगे तो मेरी बीवी ने बच्चियों को धमकाया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, 2 बेटियों के होते हुए अंकल खुद बिस्तर बिछा रहे हैं। बच्चियां दौड़ी और बोली, अंकल लाइए, हम बिस्तर कर देते हैं। मौलाना साहब ने उनको बहुत मना किया, मगर उन्होंने जबरदस्ती लेकर बिस्तर बिछा दिया। ऊपर वाली बर्थ पर मौलाना का बिस्तर हो गया। मेरी बीवी, जो बहुत खिदमत गुजार औरत है, उन्होंने मौलाना साहब के जूते उठाकर हिफाजत से अंदर रख दिए। मौलाना साहब को बता भी दिया कि जूते सामने बर्थ के नीचे रख दिए हैं, कभी रात को आप उतरे और तलाश करें और परेशान हो। मौलाना साहब ने कहा, आपने बहुत शर्मिंदा किया, ये बात सच्ची है अहमद भाई, इंसानियत के सच्चे हमदर्द, एक दाई की जरा से खिदमत ने कि मेरी बच्चियों ने मौलाना साहब का बिस्तर बिछा दिया था और मेरी बीवी ने जूते उठाकर रख दिए थे। हमारी किस्मत बदल दी और जिंदगी भर कुफ्र शिर्क में भटकते हम निकम्मों पर हिदायत की बारिश का जरिया बन गई। बल्कि मेरे बच्चों और मेरी बीवी की खिदमत अभी तक हमारे आधे खानदान के लिए हिदायत का जरिया बन चुकी है। सवाल, इसकी ज़रा तफसील बताइए। जवाब, अहमद भाई, मौलाना साहब ने हमें बाद में बताया कि बच्चियों के बिस्तर बिछाने और मेरी बीवी के जूता उठाकर रखने से उनका दिल भर आया। रात को देर तक वो हमारे लिए हिदायत की दुआ करते रहे। सुबह सवेरे तहज्जुद के लिए उठे और मौलाना साहब कहते हैं कि वो हमारे और हमारी नस्लों के लिए हिदायत की दुआ करते रहे। मौलाना साहब बताते हैं कि मैंने अल्लाह से फरियाद की कि मेरे मौला, नफरत के इस माहौल में इन बच्चियों और इनकी माँ ने आपके इस हकीर और तहीम दामा बंदे की साथ भलाई की है। मौलाए करीम, ये गंदा इसका बदला नहीं दे सकता, बस आप इनकी नस्लों के लिए हिदायत के फैसले फरमा दीजिए। मौलाना साहब कहते हैं, मैंने दुआ की और इरादा किया कि हम लोगों से दावत के सिलसिला में बात करेंगे। सुबह 8 बजे तक बच्चे सोते रहे। सोकर उठे तो नाश्ता वगैरह में लग गए, फिर खेलने लग गए, मस्ती करने लगे। मौलाना साहब कहते हैं, मुझ पर हद दर्जा बेचैनी थी कि किस तरह मैं इन्हें इस्लाम की दावत दूं, मगर जैसे जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। बार बार मौलाना साहब कुछ कहने को होते मगर कुछ कह ना पाते। 11 बजे ट्रेन थोड़ी सी देर से निजामुद्दीन स्टेशन पहुंची। मौलाना साहब बताते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बेचैनी बढ़ती गई। ख्याल था कि अगर मैंने इनको दावत ना दी तो फिर कौन इनसे मुसलमान होने को कहेगा, मगर जुबान खुल नहीं पा रही थी। गाड़ी से हम सब उतरे। मैंने मौलाना साहब का बैग जबरदस्ती उठा लिया कि एक सज्जन की खिदमत में मैं भी शामिल हो जाऊं। बहुत हिम्मत करके मौलाना ने अपने ब्रीफ केस से एक किताब आपकी अमानत निकाली। मौलाना साहब कहते हैं, मैंने अपने आप को बहुत मुलामत की और हिम्मत करके बच्चों को इकट्ठा किया और हमारी मौजूदगी में बच्चों से कहा, तुम्हारी मोहब्बत और आपस की हंसी से दिल बहुत खुश हुआ। तुम कितने अच्छे लग रहे थे। बस तुम्हारे अंकल की एक दरखास्त है, इसको याद रखना। वो ये है कि शादी के बाद भी तुम लोग इसी मोहब्बत से रहना। सिर्फ 2 पैसों और बच्चों और अपने शौहरों के चक्कर में इस मुकद्दस रिश्ते को मत खराब करना। सब बच्चों ने मौलाना के पांव छुए। मौलाना ने मना किया और आखिर में मौलाना ने आपकी अमानत आपकी सेवा में मुझे ये कहते हुए दी, ये मेरा पता है, मेरे पास विजिटिंग कार्ड इस वक्त नहीं है। मैं अपने घर वालों से बार बार कहता रहा कि किस देवता के साथ मालिक ने हमें सफर कराया कि हमारे बच्चों से कैसी हमदर्दी और मोहब्बत की बात कह गए। और मैं बार बार बच्चों को याद दिलाता रहा कि देखो, अंकल की बात याद रखना, वो कोई देवता आदमी थे। 2-3 दिन दिल्ली में रहे। इसके बाद हम लोग शिमला गए और रास्ता में हमारी चंडीगढ़ के सफर में एक आदमी से मुलाकात हुई। वो ट्रेन में मांग रहा था। उसने अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी बैठकर सुनाई कि मेरा दिल भर आया। हम लोग शिमला पहुंचे, रास्ता की बातें हो रही थी तो मौलाना साहब की बात भी आई। मैंने फिर बच्चों को याद दिलाया, अंकल की नसीहत याद रखना। कमला ने कहा, पिताजी वो किताब भी तो अंकल ने दी थी, वो कहाँ गई। मैंने किताब निकाली और एक बैठक में पढ़ डाली। मैंने उस किताब को दोबारा सब बच्चों को सुनाया। मौलाना साहब की निजामुद्दीन स्टेशन की बातों से मेरे और मेरे बच्चों के दिल में
یہ بات بالکل بس گئی تھی کہ وہ ہمارے ہمدرد اور بے لوث ہمدرد ہیں۔ ہم سبھی نے اس کتاب کو اپنے ہمدرد اور خیرخواہ کی بات سمجھ کر پڑھا اور سنا۔ احمد بھائی، آپ جانتے ہیں آپ کی امانت تو ایک پھندا ہے۔ اگر کسی انسان کے سینہ میں پتھر نہیں ہے، دل ہے، تو پھر وہ دل اس کتاب کا ہو ہی جاتا ہے۔ شملہ سے واپس ہوئے کیونکہ اس کتاب میں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی سونپی ہے، اس لیے چندی گڑھ سے میں نے اس کتاب کی 20 زیرکس کاپیاں بنوائیں۔ اب یہ سفر ہماری زندگی کا انقلابی سفر تھا۔ یوں تو ہمارے والد صاحب ایک اسکالر انسان تھے، اس لیے عام لوگوں کی طرح مسلمانوں سے نفرت ہمارے گھرانے میں نہیں تھی، مگر اسلام اور مسلمان ہمارے لیے غیر تھے۔ مگر اب ایسا نہیں تھا۔ ٹرین میں نے مسافروں کو وہ کاپیاں دیں اور سارے راستہ بچوں میں اسی کتاب کا ذکر ہوتا رہا۔ شاید اس کتاب کی اکثر باتیں ہمارے بچوں کو بھی زبانی یاد ہو گئی۔ پونا آیا تو مجھے اسلام کو مزید جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ کسی نے مجھے پروفیسر انیس چشتی صاحب سے ملنے کا مشورہ دیا۔ میں ان سے بھی ملا، مگر نہ جانے کیوں وہ کچھ مسائل میں گھرے تھے، وہ مجھے خاطر خواہ وقت نہیں دے سکے۔ ایک جگہ سے اسلام کیا ہے کتاب میں نے حاصل کی، اس کو پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کا ہندی انواد یعنی ترجمہ پڑھا۔ مہینوں کے سوچ و بچار کے بعد ایک بار پھر آپ کی امانت ہم نے پڑھی اور مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا۔ مسلمان ہونے کے لیے میں بہت سے پڑھے لکھے مسلمانوں سے ملا، مگر اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ مسجدوں میں اماموں کے پاس بھی کیا، میرے بیٹے نے مجھے مشورہ دیا کہ میں پلت میں مولانا صاحب کو خط لکھوں۔ مولانا صاحب کا خط ہمیں عید کے 4 روز پہلے ملا، جس میں لکھا تھا: